So I have started the recording now. In the last session, we have seen two, three important topics of Python data types. And those were dictionary, set, bis, we all. We also have one more as tuple. Yes. Okay. Now we will see functions. What are functions in Python and how we create it? And actually, very first question: why do we need functions? So first, I am going to show you how the functions are created in Python. Every time when you are using these functions, whenever I was using these terms like a length or type, these are functions, right? Even above, if you see, uh, these are methods. We will talk about that very later on. But we have seen few functions till now, like print, like len function, like sorted function, sorted, and all those functions have been in Python. Like those are the inbuilt functions of Python. We will see today how to create your own functions. What if you want to create a functions of your own? How can be created? So we use this term def, and then we give name of the function, name of the function. Okay, let me first start this. Mm, okay, now notebook is running. So, and what you can give in the place of the name of the function? Same thing that we have learned in identifiers, how we can define identifiers. Same approach we have to do uh, while defining a function, while giving a name to a function. So approach is, you can't start name of the functions with any number like digit. You can't start with any number. You can start with underscore. You can start with any alphabet characters, and only non-alphanumeric characters that you are allowed to use is underscore. Other than this, you cannot use any other special characters or other non-alphanumeric characters while naming any functions. So just for a sake, just for introduction, how functions are created, I'm going to create a function for checking any number is a even number or not. So I will just create a function is even, and I'm taking a number. I will explain what is this. So this is parameter, and inside the function I will use logic to check a even number. So logic is, whenever a number is divided by 2 and if its remainder is 0, then it is a even number, right? Okay, I have written this spelling down, even is even. Now I will use if statement. If n modulo 2 डबल इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ए इवन है या नहीं. इवन है मतलब वी विल रिटर्न ट्रू, return true, and true is like this. Else return false, right? This is our function. So there are multiple things in it. We know the first thing that you have encountered is how we define a function. So this is the naming convention. You have to use this keyword def. इसका फुल फॉर्म ऐसे आप समझो कि def मतलब define. This is the next thing that we write is the function's name, and then we start this bracket, a small bracket, and inside the bracket we give parameters. Okay, and now based on this parameter we are
actually defining our logic. This is the logic part of our if else. This is the logic part of our function. Now here, if n is divisible by 2 means अगर उसका रिमाइंडर 0 आएगा तो हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं 0. वी आर रिटर्निंग 0 और else we are returning false. Now what is return and what is the use of return? I will explain it all. So first run this cell and I will just show you how to use a function. Like we already know how to use a function, like we were using sorted. We used to just write the name of the function and then inside this we used to pass a list, right? So like same way we will use our on made function each event and we will pass a number. This number will get passed to n. Whatever I will give here as a input will get here in the place of n. So let's say I have entered 12 and if I run this code, it's giving me a result true because 12 is passed here as n and on 12 we are performing these operations n modulo 2 double equal to 0, which is true. So if this statement is true means it will execute if part, so return true. And one more thing, if you want to see how n what is the value of n, how this 12 is getting here, I am showing you by printing this print n in the in the very first line of the functions. And if I call this, then you will see this number gets printed first and then it will return a value true. One more thing I am going to show just to explain how this return statement works. So I have printed this n in the as a first line of the function, and again I'm here doing print n or and I'm giving another notation. Let's say function int. So what will be the out? Okay, I have given this wrong sentence. Is event 12. See, why did these functions not get executed? Sorry, this statement didn't get executed. Why? Because as soon as this true statement is encountered, we get we transfer the control out of the function. अगर मैं आपको एक और चीज इसके बारे में बताऊं कि अगर मैं सारे कोड के ऊपर ना लाइन नंबर्स में दे देता हूं आपको समझाने के लिए बस, बट मैं अगर जब लाइन नंबर दूंगा तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा इन द सेंस, क्योंकि वो अच्छा मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, लाइन 1 यहाँ पे, लाइन 2 हैशटैग, लाइन 3, लाइन 4। ये मैं क्यों दे रहा हूँ, बस ताकि मैं बता पाऊँ कि कैसे कैसे कंट्रोल जो है वो शिफ्ट हो रहा है। लाइन 5, लाइन 6, लाइन 7, लाइन 7। जैसे ये तो हमारा फंक्शन का डिफिनेशन पार्ट हुआ है पूरा। अब जैसा ही हमने इसको कॉल किया तो हमें कुछ आउटपुट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये फंक्शन अभी सिर्फ डिफाइन हुआ है, उसको रन नहीं हुआ है। इसका सिर्फ डिफिनीशन हमने लिखा है। जैसा ही हम ए फंक्शन को कॉल करते हैं, दिस इज द कॉलिंग पार्ट। अब जैसा ही हमने कॉल किया तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इस पूरे जितने भी प्रोग्राम्स इसके जहाँ पे रन हो रहे हैं उस प्रोसेसर यूनिट में ये सर्च करेगा इज इवन नाम से कुछ वहां पे है या नहीं है, क्योंकि इसे तो पता नहीं है अभी, राइट? तो पहले वो सर्च करेगा। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है तो इसके पता चल जाएगा कि हाँ एक फंक्शन है इज इवन के नाम से। अब उस फंक्शन के पास कंट्रोल चला जाएगा। जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट हम करेंगे ना तो क्या होगा, शिफ्ट ऑफ एग्जीक्यूशन जो होगा वो ऐसे होगा कि यहाँ पर से जैसे ही मैंने इसको रन किया, सपोज रन करने के बाद फिर यहाँ पर तो आपको रिजल्ट मिल जा रहा है, राइट? पर उसके
बैकएंड में क्या प्रोसेस हो रहा है कि जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ जाएगा लाइन नंबर 1 पे, और लाइन नंबर 1 पे आया मतलब अब ये जो 12 है वो n के पास चला जाएगा। अब लाइन नंबर 2 पे आएगा, लाइन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है कि प्रिंट n, मतलब वो प्रिंट n कर दिया। फिर तीसरे लाइन पे क्या हो रहा है, वो चेक कर रहा है, एक वहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट है जो जिसके अंदर एक लॉजिक क्या चेक हो रहा है कि n मोडुलो 2 डबल इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इनपुट दिया 12, तो ए वाला जो लॉजिक है अंदर वाला वो ट्रू हो जाएगा, मतलब इफ स्टेटमेंट ट्रू हो गया, देन वो इफ के पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तो इफ का पार्ट क्या है, ए रिटर्न ट्रू वाला पार्ट जो कि लाइन नंबर 4 है। अब जैसे ही यहाँ पे रिटर्न ट्रू हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब इस पूरे फंक्शन ने, जो मैंने बोला कि इसको रन करने के बाद जो कंट्रोल लाइन 1 के पास आ गया था, जैसा ही यहाँ पर से रिटर्न इसको मिलेगा, अब कंट्रोल जो है इस फंक्शन के बाहर आ जाएगा। कहाँ पे, जहां पे भी उस फंक्शन को कॉल किया गया था। तो दिस इज द कॉलिंग पार्ट, दिस इज डिफिनेशन पार्ट। मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, दिस इज डिफिनेशन पार्ट। दिस इज कॉलिंग। ओके, तो जैसा ही उसको रिटर्न का स्टेटमेंट का काम क्या है, जैसे ही उसको रिटर्न दिखेगा वो क्या करेगा कि एग्जीक्यूशन को कॉलिंग पार्ट के पास भेज देगा, जहां से भी उस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है एग्जीक्यूशन उस लाइन पे आ जाएगा। अब एग्जीक्यूशन इस लाइन पे आ गया, इसका मतलब कि अब प्रोग्राम मेरा इंड हो गया, क्योंकि इसके बाद तो कोई लॉजिक लिखा हुआ नहीं है मेरा, राइट। अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एग्जैक्टली तो हुआ क्या, जैसे मैं यहाँ पे भी अगर मैं प्रिंट कर देता हूँ कि फंक्शन फिनिश्ड, अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखो 12 आएगा और उसके बाद फिर फंक्शन फिनिश्ड आया। क्यों आया, क्योंकि 12 तो प्रिंट है, इसके वजह से हो गया डीएफ जैसे मैंने किया यहाँ पे। अब उसके बाद फिर रिटर्न कर दिया ट्रू, रिटर्न कर दिया ट्रू, और रिटर्न जैसा ही ट्रू हो गया मतलब लाइन 4 के बाद एग्जीक्यूशन कहाँ पे आ गया, इसी के पास जहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा था, जहाँ पे इसको कॉल किया जाता, सॉरी, जहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया गया वहां पे आ गया एग्जीक्यूशन। अब उस एग्जीक्यूशन के लाइन के बाद क्या है, प्रिंट है, तो प्रिंट वाला स्टेटमेंट जो है अब उसके बाद रन होगा। दो और चीजें हैं जो मैं यहाँ पे बोलूंगा, अभी आप देखो इसके पहले जब मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा था तो क्या हो रहा था, ट्रू जो है वो आपको दिख रहा था आउट यहाँ पे। वो क्यों हो रहा था, जैसे जब भी आप सपोज ए में आप कुछ 10 रखते हो और आप किसी कोड सेल पे सिर्फ आप ए लिख कर करके जब आप उसको रन करोगे जुपिटर नोटबुक में या किसी भी तरह के नोटबुक में, कोलैब नोटबुक, जुपिटर नोटबुक, आप जो भी नोटबुक अगर यूज करते हो, तो उसमें आप सेल में अगर सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखोगे और उसको रन करोगे, तो उस वेरिएबल में जो भी इनपुट में जो भी उस स्टोर कर रहा है ना, वो उसका आउटपुट यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। बट अगर आप इस लाइन के नीचे, एक के नीचे अगर आप कुछ और स्टेटमेंट कर दो, सपोज यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि प्रिंट हाय, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि प्रिंट हाय, तो अब आपको क्या दिखेगा, सिर्फ प्रिंट हाय दिख रहा है, ए वाला स्टेटमेंट का आउटपुट नहीं दिख रहा है। क्यों, तो एक लॉजिक है, अगर ए के आउटपुट को अगर आपको प्रिंट कराना, अगर आपको आउटपुट में दिखाना है तो आप उसको स्पेसिफिकली ऐसे प्रिंट के अंदर में आप उसको भेजोगे, आपको ऐसे स्पेशली करना पड़ेगा, तब वो प्रिंट में आएगा। अगर आपको बिना प्रिंट स्टेटमेंट के ही उसके वैल्यू देखने हैं, तो हमेशा आपको उसको सिंगल लाइन मतलब सबसे लास्ट लाइन वाले में आपको रखना होगा। जैसे अभी भी मैं अगर प्रिंट हाई के बाद अगर मैं सिर्फ ए ऐसे लिख दूं, तब आपको तीनों के रिजल्ट दिखेंगे, प्रिंट ए के चलते 10 प्रिंट हुआ, प्रिंट हाई के चलते हाई प्रिंट हुआ, और ए का यहाँ पे भी आपको फिर से वैल्यू आउटपुट जैसा दिख रहा है 10। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे हुआ, जैसा ही जब ये फंक्शन मैंने नहीं लिखा था तब आपको यहाँ पे ट्रू दिख रहा होगा, वो इसीलिए दिख रहा था क्योंकि इस फंक्शन ने कुछ रिटर्न किया, और जो रिटर्न किया वो आपको एज आउटपुट में दिख रहा था। बट जैसे हम क्या कर सकते हैं ना कि जो भी अगर कुछ फंक्शन, कोई फंक्शन है जो कुछ रिटर्न कर रहा है, हम उसको स्टोर कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम ए में हम उसको स्टोर कर लिए, अब जब मैं इस फंक्शन को रन करूंगा इजिवेंट 12 को, तो आप देखोगे यहाँ पे 12 फिनिश आएगा, फंक्शन फिनिश प्रिंट होगा। अब आप जब ए का वैल्यू देखोगे कि ए में क्या है,
तो अगर आप प्रिंट करके देखो, प्रिंट करके देखो, या तो फिर आप लास्ट लाइन में आप ऐसे करके देखो। आपको दोनों केसेस में ए के अंदर का वैल्यू आपको प्रिंट स्टेटमेंट मतलब एज आउटपुट दिखेगा, तो आपको देखो दिख रहा है यहाँ पे ट्रू। हुआ क्या, एज इवन ने रिटर्न किया क्या, एज इवन ने रिटर्न किया ट्रू, और वो ट्रू हमने कहाँ पे स्टोर कर लिया, ए में, इसलिए अब ए का वैल्यू क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये चीजें हैं। जैसा ही आपको फर्स्ट चीज आपको क्रिएशन में आपको जो ध्यान रखना है वो है कि आप कीवर्ड यूज करोगे डीईएफ, और फिर आप फंक्शन का नाम दोगे, और फिर आप ब्रैकेट यूज करोगे, स्मॉल ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर में आप पैरामीटर्स यूज करोगे। अगर आप फंक्शंस क्या बिना पैरामीटर के हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। जैसे मैं कोई फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे डीएफ हेलो करके, इस फंक्शन ये फंक्शन क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। जैसे ही मैं इस फंक्शन को रन करूंगा तो इसका काम होगा कि वो प्रिंट कर दे स्क्रीन पे हेलो। ठीक है, अब यहाँ पे एज वाला पार्ट तो मेरा डिफिनीशन पार्ट है, फंक्शन डिफाइन का ये वाला पूरा कोड है ऊपर वाला। तो इस यहाँ पे अगर मैं कुछ रन करूंगा तो मुझे आउटपुट में कुछ नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि अभी अभी तो एक कोड जो है एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, अभी बस इस फंक्शन का जो कोड है जिस जो प्रिंट हेलो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अभी सिर्फ एक डिफाइन हेलो का एग्जीक्यूट हुआ है, और डिफाइन हेलो के चलते क्या होता है कि आपके मेमोरी में जहां पे भी ये प्रोसेस रन हो रहा है वहां पे एक हेलो नाम से एक नेम एलोकेट हो जाता है एक फंक्शन के लिए। ठीक है, अब जैसा ही हम यहाँ पे कॉल करते हैं हेलो को, तो आपको क्या दिखेगा, प्रिंट में आपको हेलो दिखेगा। अब यहाँ पे दो चीजें आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे रिटर्न नहीं किया कुछ, रिटर्न कुछ नहीं किया, राइट। तो अगर मैं कुछ रिटर्न नहीं किया हूँ और फिर भी मैं अगर मैं ऐसे करूँ जैसे मैं लास्ट स्टेटमेंट में किया था कि इक्वल टू हेलो मैं करूँ, तो आपको प्रिंट तो दिख जाएगा, वो प्रिंट दिख रहा है इसके वजह से। बट अगर आप अब ए का वैल्यू देखना चाहोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको नन मिलेगा। नन क्यों, क्योंकि मैं कुछ अगर प्रिंट नहीं कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो क्या प्रिंट कर रहा है, नन। ये फंक्शन पाइथन के फंक्शंस मतलब ऐसा ही बिहेव करते हैं। ठीक है, आप ऐसा समझो कि अगर कुछ नहीं प्रिंट कर रहा है मतलब वो नन प्रिंट कर रहा है, कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है मतलब वो नन रिटर्न कर रहा है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ तो दो चीजें आपने देखा कि या तो आप रिटर्न यूज कर सकते हो या तो नहीं कर सकते हो। अगर आपके लॉजिक को जरूरत है रिटर्न यूज करने का तो आप रिटर्न यूज कर लोगे। अगर आपको नहीं जरूरत है, जैसे नीचे वाले फंक्शंस में मैं बनाना चाहता है एक फंक्शन जो बस इतना काम करे कि हेलो को स्क्रीन पे प्रिंट कर दे। ओके, तो मैंने रिटर्न यूज नहीं किया, ना ही मैंने कोई पैरामीटर यूज किया। बट अगर मुझे पैरामीटर की जरूरत है, जैसे मुझे ईच इवन नाम का एक फंक्शन बना था जिसका काम ये था रखना था मुझे कि उसको मैं एक नंबर दूं तो वो मुझे एक आउटपुट में दे कि वो नंबर इवन है या नहीं है। तो इवन है तो इसका मतलब वो ट्रू दे रहा था, रिटर्न में ट्रू दे रहा था, और इवन नहीं है तो फॉल्स दे रहा था। तो इसी तरह से आप फंक्शंस का यूज करते हो। आप आपके मतलब आपके काम के टाइम पे जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे होगे, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, तो आपको ये रिक्वायरमेंट देखना होगा कि कब मुझे रिटर्न करना है, कब मुझे बिना रिटर्न करना है, कब मुझे पैरामीटर लेना है, क्या मुझे पैरामीटर लेना है। ये आपको आपके प्रोजेक्ट वर्क के साथ आपको पता चलेगा कि मुझे क्या पैरामीटर्स लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। ठीक है, तो इतना हो गया फंक्शंस के ऊपर। अभी फंक्शंस में और कुछ-कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे होता है टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स। अब ये क्या होता है? अभी तो आपने देखा कि जब मैं प्रिंट हेलो कर रहा था, डीएफ हेलो जब मैं बनाया था, तो इसके अंदर में मैं कोई भी पैरामीटर नहीं लिया था, राइट? एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट मैं लिखवाना चाहता था, हेलो। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक पैरामीटर लूँ, नेम बोल के, और नेम बोल के पैरामीटर लेने के बाद जो मेरा फंक्शन है वो क्या करेगा ना, कि वो उस नाम को बोलेगा। जैसे लाइक मैं अगर पैरामीटर में बाद में अगर मैं कॉल करता हूँ कि स्टूडेंट्स पास करता हूँ, तो हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट हो। अगर मैं सुमन पास करता हूँ, तो वो हेलो सुमन पास हो, ऐसे। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक पैरामीटर में एक नेम लूँगा, नेम, और इसको ऐसा ही मतलब नेम मैंने दे दिया। अब यहाँ पे जब मैं आ रहा हूँगा स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग के टाइम पे अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने पढ़ाया था डॉट फॉर्मेट फंक्शन या फिर एफ स्ट्रिंग फंक्शन, ऐसे करके।
या फर्स्ट स्ट्रिंग या फिर डॉट फॉर्मेट करके भी मैंने एक चीज बताई थी। डॉट फॉर्मेट क्या करेगा, अगर आपके स्ट्रिंग में इनके बीच में अगर आपको कोई वैल्यू वेरिएबल से पुट कराने हैं, तो आप वहां पे जहां पे आपको पुट कराने हैं वहां पे आप करली ब्रेसेस यूज करोगे, और फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट फंक्शन यूज कर करके आप जो भी वैल्यू यहाँ पे आपको प्रिंट कराने हैं वो आप पास कर दोगे। तो मुझे क्या यहाँ पे डालवाना है, हेलो के बाद नेम, तो मैं नेम ऐसे डाल दूंगा। अब मैं फंक्शन को जब मैं एक, इस फंक्शन को मैंने जब बना लिया, अब मैं इसको जब मैं कॉल करने जाऊंगा तो ये क्या लेगा मुझसे, एक पहले एक और चीज, अगर मैं बिना कुछ पास किए जब मैं इसको रन करूंगा ना, तो आप देखो एरर बोलेगा। क्यों? क्योंकि मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। ये क्या बोल रहा है? रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट इसको चाहिए। अब क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है इसका डिफिनेशन में कि ये एक नेम लेगा ये। ओके, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी देना होगा। तो मैं अगर सुमन यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ, इनपुट इन सेंस कि मैं यहाँ पे पैरामीटर भेज रहा हूँ, ये पैरामीटर किसको मिलेगा? इस नेम को मिलेगा। ये जो नेम जो है उसको मिलेगा, और वो ये जो आपको प्रिंट किया हेलो, और इस करली ब्रेसेस की जगह पे इस डॉट फॉर्मेट का यूज कर करके हमने नेम को प्लेस करवाया, तो हेलो सुमन प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल पोजिशनल आर्गुमेंट का और भी कुछ मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। सपोज कि नेम तो मैंने ले लिया, अब हेलो फंक्शन में ही मैं ये कर देता हूँ सपोज, अच्छा मैं न्यू सेल में काम कर लेता हूँ, अच्छा मैं एक न्यू फंक्शन बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ ग्रीट। ग्रीट क्या करेगा, आप इसको एक नेम दोगे, नेम, और दूसरा एक और चीज आपको इसको देना होगा, वो होगा कि आप क्या ग्रीट करना चाहते हो। जैसे वहां पे हेलो आपने बुला रखे थे, तो आपने बाय डिफॉल्ट उसको दे दिया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बट अगर बार बार आपको चाहिए कि नहीं अभी मैं हेलो करूं, बाद में बाय करूं या गुड बाय करूं, कुछ ऐसे, तो आप यहाँ पे ग्रीट करके, ग्रीटिंग कर करके आप एक और आर्गुमेंट ले लोगे, और इसके बाद फिर आप प्रिंट में सेम जैसे हम लोग कर रहे थे, तो करली ब्रेसेस का यूज कर कर करके हम लोग इसमें यूज करेंगे, और स्पेस, फिर से एक और करली ब्रेसेस, और डॉट फॉर्मेट का यूज करेंगे। डॉट फॉर्मेट में हम क्या पहले पास करेंगे? ग्रीटिंग। क्यों? क्योंकि पहले मुझे ग्रीटिंग दिखाना है, हेलो बाय या जो भी होगा ग्रीटिंग्स में, और सेकंड में मुझे दिखाना है नेम। तो ग्रीटिंग जो है कहाँ पे जाएगा? इस फर्स्ट करली ब्रेसेस में, और नेम का वैल्यू कहाँ पे जाएगा? सेकंड में। अब इस दोनों के बीच में मैं बस एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स ऐसे दे देता हूँ। अब मैं जब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा, सॉरी, डिफाइन, इस डिफिनेशन पार्ट को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, और इसके बाद जब मैं कॉल करूंगा तो तब आप देखोगे रिजल्ट में कुछ चेंजेस आएंगे। चेंजेस क्या है? जैसे मैं दिखा देता हूँ पहले। ग्रीट और नेम में मैंने फिर से सुमन दिया, और ग्रीटिंग में मैं फिर से अगर हेलो ही दे रहा हूँ ऐसे, तब आप देखो हेलो सुमन, राइट। अब मैंने बताया कि ऊपर में जब एरर आ रहा था तो वहां पे लिखा हुआ था स्पेशली कि पोजिशनल आर्गुमेंट्स मिसिंग। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि ये पोजीशन, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे जो नेम था, सेम यहाँ पे जो मैं फर्स्ट पोजीशन पे जो मैं पास करने, जो कॉलिंग के टाइम पे जो मैं पास कर रहा हूँ पैरामीटर, वही फर्स्ट पोजीशन पे जो ऑलरेडी आर्गुमेंट का नाम दिया गया है उसको जाकर के मिलेगा। यहाँ पे मैंने सेकंड पोजीशन पे मैंने ग्रीटिंग लिखा था, तो सेकंड पोजीशन पे मैं यहाँ से जो पास कर रहा हूँ वो ग्रीटिंग को जाके मिलेगा, राइट। अब इसका अगर मैं पोजीशन चेंज कर करके कॉल करूँ तो क्या होगा आप देखो। मैं पहले अगर हेलो पास कर दूं और बाद में सुमन, तब क्या होगा? वो प्रिंट करेगा मुझे सुमन हेलो। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब जो हेलो है वो नेम को जाके मिल रहा है, सुमन जो है वो ग्रीटिंग्स को जाके मिल रहा है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? पोजीशन पे, राइट। कि जो पहले पोजीशन पे जो है वो पास करने के टाइम पे भी पहले पोजीशन वाले के साथ मैच होगा, सेकंड पोजीशन पे जो है वो सेकंड पोजीशन के साथ मैच होगा, ऐसे समझो, ठीक है। और एक दूसरा होता है, उसको बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कि आप
डिफिनीशन के टाइम पे सेम यही ग्रीट फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। कीवर्ड एलिमेंट्स के क्या फायदे हैं वो भी मैं बताऊंगा कि अगर मैं पहले से ही नेम कर दूं और यहाँ पे इक्वल टू नन, और सेकेंड जो मैं रखता हूँ वो ग्रीटिंग नन, प्रिंट जस्ट हाँ प्रिंट, मैं यहाँ पे सेम ए वाला जो स्टेटमेंट ऊपर में हमने यूज किया था, इसी को मैं कंट्रोल सी कंट्रोल बी। अब मैं इसको रन कर मतलब वो वाला डिफिनेशन वाला पार्ट को रन कर ले रहा हूँ। अब मैं जब कॉल करूंगा सेम फंक्शन को ग्रीट को, अब आप क्या देखोगे कि जब मैं पास कर रहा हूँ ना किसी वैल्यू को, तो मुझे नेम इक्वल टू मन पास करो कर रहा हूँ और ग्रीट इक्वल टू हाय। अब जब मैं इसको कॉल करूंगा तब आपको क्या दिखेगा, सॉरी ग्रीट नहीं है ग्रीटिंग है। अभी देखो बाय सुमन आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप इस यहाँ पे जो आप कॉल कर रहे हो ना उसका ऑर्डर आप कुछ भी रख लो। सपोज मैंने ग्रीटिंग पहले लिख दिया और बाद में मैंने नेम इक्वल टू सुमन किया ऐसे, तो आपको क्या दिखेगा, बाय सुमन ही दिखेगा। जबकि आप पहले जब मैं ऑर्डर चेंज कर रहा था नेम और हेलो का, तो मुझे रिजल्ट जो है वो उल्टे मिल रहे थे। बट अभी इवन दो कि मैंने ऑर्डर जो है वो चेंज किया, रिजल्ट मुझे सेम मिल रहा है। ठीक है, तो ये है कीवर्ड आर्गुमेंट्स का फायदा। कीवर्ड आर्गुमेंट्स का फायदा और भी आप इस तरह से सोचो कि अगर सपोज आपको कोई फंक्शन बनानी है जिसके अंदर पैरामीटर्स जो है बहुत बड़े हों। आपको मैं एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे लेन फंक्शन आप यूज करते हैं हम लोग ना, तो अगर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, जैसे कुछ देर आप वेट करोगे तो इसके बाद आएगा। अच्छा सॉरी, लेन में तो नहीं है, ज्यादा कुछ सॉर्टेड में नहीं होगा। कोई और ऐसे फंक्शंस जिसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हो। ओके, जैसे लिस्ट का मैं दिखाता हूँ, इंडेक्स। अब मैं थोड़ा सा अगर मैं वेट करूंगा तो यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शंस ए वाले आएंगे। अब आप इसमें देखो कि इसके अंदर कितने कितने चीज हैं पहले से ही। सेल्फ है, वैल्यू है, स्टार्ट है, फिर स्टॉप है। ठीक है, तो आपको हम अगर ऑर्डर बाय चांस आपने फंक्शंस बनाया और आपको ऑर्डर ध्यान में नहीं है कि आपने किस ऑर्डर में कौन से वेरिएबल रखे हैं, राइट, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको हमेशा आपको रिजल्ट्स मतलब उटपटे आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऑर्डर नहीं ध्यान में है और आपने अगर डिफरेंट ऑर्डर्स में आपने कॉल कर लिया फंक्शन को, डिफरेंट ऑर्डर में पैरामीटर पास करके आपने कॉल किया, तो आपको जो रिजल्ट होंगे वो उल्टे आएंगे। तो आप क्या कर सकते हो उस जगह पे, आप क्या कीवर्ड आर्गुमेंट्स का यूज कर सकते हो। आप जो पास कर रहे होगे वैल्यू, आप उसके साथ जिस कीवर्ड को आप पास कर रहे हो, जैसे आपको नेम को पास करना है तो आपने नेम इक्वल टू लिख दिया। अब इसका पोजीशन कुछ भी हो, ये नेम को नहीं जाकर के मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है नेमिंग आर्गुमेंट, और सॉरी कीवर्ड आर्गुमेंट्स। कुछ और आर्गुमेंट्स हैं होते हैं, एक अ, यहाँ पे आपको मेंशन किया होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ओके, सपोज मैं अगर सेम आप यहाँ पे देखोगे इस वाले फंक्शन में, जैसे इसके ऊपर वाले फंक्शन में जब मैं सुमन नहीं दे रहा था तो आपको एरर आ रहा था, राइट। यहाँ पे जब मैं जैसे मैं दिखा देता हूँ फिर से एक बार, जब मैं कोई पैरामीटर जो है वो पास नहीं कर रहा था तो वो एरर दे रहा था। क्यों एरर दे रहा था? क्योंकि इसे कुछ पैरामीटर चाहिए बट मैं पास ही नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो वो रिजल्ट में आ रहा था मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। बट इस वाले फंक्शन में आप देखो जो मैंने दोबारा बनाया यहाँ पे, ग्रेट इक्वल टू नेम, यहाँ पे मैंने कुछ पहले से दे रखा है, राइट, नन।
अब मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाहूँ ग्रिड को। अच्छा, मैंने ग्रिड ऊपर में अगर इसको मैं फिर से एक बार कर देता हूँ। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ कि एक तो लिस्ट का एग्जांपल देने के लिए था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। तो आपको दिखेगा कि ग्रीटिंग्स और नेम मैं अगर पास नहीं भी करता हूँ, तब आप देखो क्या होता है। ये एरर नहीं दिया। एरर क्यों नहीं दिया? क्योंकि इवन दो मैं कुछ पास नहीं कर रहा हूँ, इसको कुछ वैल्यू पहले से मिले हुए हैं। वो वैल्यू क्या है? नन। इसलिए उसने क्या प्रिंट कर दिया? नन और नन। ठीक है? अगर मैं कोई वैल्यू पास कर देता तो क्या होता? जो भी वैल्यू मैं यहाँ पर से जैसे ग्रीटिंग इक्वल टू बाय किया था, तो ग्रीटिंग में अब बाय आ जाता, या फिर नेम में जैसे मैंने सुमन पास किया था तो इस नेम में सुमन आ जाता। बट अगर मैं कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देखो वो नन नन ले रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने डिफिनीशन के टाइम ही उसे एक वैल्यू असाइन कर दिया था। ओके, अब इसके मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। सपोज मैं एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड बोल के। ऐड क्या करेगा कि दो नंबर्स को ऐड करेगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि एक नंबर मुझे मिलेगा, दूसरा बी होगा। अब बी में मैं 5 पहले से रख दे रहा हूँ, इवन दो कि जो भी उस फंक्शन को यूज़ करेगा, वो अगर बी में पार्टिकुलर कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि वो ए में 5 को ऐड कर देगा। ओके, अब रिटर्न ए प्लस बी। इस कोड सेल को मैं रन किया हूँ, यहाँ पे कुछ और कोड सेल्स में बना लेता हूँ। अब जब मैं इस ऐड फंक्शन को कॉल करूँगा और सपोज ए के लिए मैं कोई वैल्यू दे रहा हूँ अभी 10, 10, ठीक है? और बी के लिए मैं कोई वैल्यू दे रहा हूँ 20, तब आपको देखो रिजल्ट में क्या आएगा? 30 आएगा। अब अगर मैं सॉरी, बी का कोई वैल्यू स्पेसिफाई यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, तब आप देखो क्या होगा? रिजल्ट में कितना आया? 15, क्योंकि ए में मैंने 10 पास किया और बी में मैंने कोई वैल्यू नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो वो बी बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले लेगा? 5 ले लेगा। अब सपोज करो कि मैं ए में ऐसे भेज रहा हूँ, ए को सॉरी, ए इक्वल टू 10, ए जो है ए को जाके मिलेगा और बी में मैं 20 ऐसे भेज रहा हूँ। तब आप देखो क्या होगा? इवन दो कि यहाँ पे मैंने जो लिखे हैं, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये तो कीवर्ड के थ्रू जाना चाहिए था। बट नहीं, इवन दो कि आप ये वाला जो है ना, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। आप आइदर उसको वैल्यू दे दो, तो वो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स हो जाएगा। अगर आप इसको वैल्यू नहीं दो, तो वो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स नहीं होगा, मतलब आपको कॉलिंग के टाइम पे उसको कुछ ना कुछ वैल्यू देना होगा। बट जैसा ही मैंने इस तरह से कॉल किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि ए को 10 मिलेगा और बी को 20 मिलेगा। बट मैं ए अगर करना चाहता हूँ, सपोज़ बी इक्वल टू 10 और ए इक्वल टू 20, अगर मुझे ऑर्डर ध्यान में नहीं है कि ए का वैल्यू सॉरी मैंने अगर मुझे ध्यान में नहीं है कि डेफिनिशन में ए जो है वो कहाँ पे है, मतलब किस ऑर्डर में है, पहले है या बाद में है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे ध्यान में नहीं है कि ए जो है वो पहले है या बाद में है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं दोनों को एज़ अ कीवर्ड आर्गुमेंट्स पास कर सकता हूँ, जो कि मैंने ऊपर में भी आपको बताया था उसका एग्ज़ाम्पल। जैसे ही मैं ए करूँगा तो अब क्या होगा कि ए का वैल्यू जो है वो 20 जाके मिलेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको। प्रिंट ए, कॉमा ए, बी, कॉमा बी। ठीक है? अभी देखो, यहाँ पे मैंने एक कोई कीवर्ड नहीं दिया है स्टेन के लिए, तो वो कहाँ जाके मिलेगा? पोजीशन के थ्रू वो जाकर के वैल्यू असाइन हो जाएगा ए को। यहाँ पे मैंने कीवर्ड दे रखा है कि 20 जो है वो बी को जाकर के मिले, तो वो
बी में चला जाएगा 20, इसलिए प्रिंट में आ रहा है A10 B20। बट यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैंने दोनों के लिए कीवर्ड दे रखा है पहले से कि 10 जो है वो बी में जाए और 20 जो है ए में जाए, इसलिए ए में 20 और बी में 10। ओके, अब यहीं पे एक और चीज मैंने आपको दिखा दिया कि आप अगर आपने डिफिनीशन के टाइम पे और कुछ वैल्यू दे रखा है, जो इस वाले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी इक्वल टू 5 या फिर ऊपर में नेम इक्वल टू नन, ग्रीटिंग इक्वल टू नन, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट पोजिशनल कब बोलते हैं, जब आप डिफिनेशन के टाइम में ऐसा लिख रहे हो और उसके कॉलिंग के टाइम में आप बिना कोई कीवर्ड के, इन जनरल जब आप पास कर रहे हो वैल्यू बिना कोई कीवर्ड के, तो वो हो जाएगा पोजिशनल आर्गुमेंट। बट अगर जिस समय आप कॉल कर रहे हो, जैसे यहाँ पे देखो, जिस समय आप कॉल कर रहे हो कॉलिंग के टाइम पे आपने स्पेसिफाई कर दिया कि बाय जो है वो ग्रीटिंग को मिले और सुमन जो है वो नेम को मिले, तो ये क्या हो गया, कीवर्ड आर्गुमेंट। अब इसका कॉम्बिनेशंस भी दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपने देखा 10 को मैंने कोई कीवर्ड नहीं दिया तो क्या ये बाय पोजीशन ए को मिलेगा, और बी को मैंने एक कीवर्ड दे रखा है मतलब बी इक्वल टू 20, मतलब यहाँ पे मैंने एज कीवर्ड आर्गुमेंट्स पास कर रहा हूँ तो मतलब ये जाके बी को मिलेगा। बट एक चीज आपको इसमें ध्यान रखना होगा और वो ये है कि आप अगर ऐड बी इक्वल टू 20 कर दो और 10, अगर आप ऐसे करने चाहोगे तो ये गलत आएगा। गलत क्यों आ रहा है, आप अगर ये सोच रहे हो कि बी में मैंने 20 दे दिया और 10 जो है वो बचा हुआ एक दूसरा जो है ए उसमें चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ये भी सोच रहे हो कि बी जो है वो 20 में चला गया, अब 10 क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है तो ये भी बी में चला जाना चाहिए था, तो ऐसा भी नहीं है। तो हो क्या रहा है ना, पाइथन एक्चुअली में एक पहले से ही एक स्टैंडर्ड बना करके रखा है कि अगर आपको आर्गुमेंट्स पास करने हैं तो सबसे पहले आप पोजिशनल आर्गुमेंट्स पास करोगे। क्या करोगे, पोजिशनल आर्गुमेंट्स आप सबसे पहले पास करोगे, उसके बाद आप कीवर्ड आर्गुमेंट्स पास करोगे। उसके बाद क्या करोगे, पहले पोजिशनल वाला और फिर दूसरा में कीवर्ड वाला, तो ही काम करेगा, नहीं तो वो आपको हमेशा आर्गुमेंट देगा, सॉरी एरर देगा। और एरर में भी वो चीज मेंशन था, मैं दिखाना भूल गया उसको, एरर में भी वो चीज मेंशन था, मैं फिर से दिखा देता हूँ। देखो, पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट, सिंटेक्स एरर, ये बाय सिंटेक्स पाइथन ने वो स्टैंडर्ड बना रखा है, सिंटेक्स बना रखा है कि आपको पहले पोजिशनल आर्गुमेंट्स पास करने होंगे, उसके बाद आप कीवर्ड आर्गुमेंट्स भेज सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ फंक्शन के डिफाइन करने का तरीका और उसके डिफरेंट वे ऑफ कॉलिंग का तरीका, कि आप कैसे कॉल कर सकते हो कीवर्ड के साथ और बिना कीवर्ड के। हाँ, बिना कीवर्ड के मतलब पोजिशनल वे में पोजिशनल आर्गुमेंट का यूज करके, और आप कैसे यूज कर सकते हो कीवर्ड आर्गुमेंट्स का। और एक और चीज हमने देखा कि कैसे हम यूज कर सकते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स को। अब हम लोग आते हैं आर्गुमेंट्स और इसको बोलते हैं आर्क्स एंड क्वार्क्स। अब ये थोड़ा-सा स्पेशल है, इसलिए इसको बताने के लिए मैं पहले थोड़ा-सा आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी तो हमने फंक्शन बनाया, ठीक है? अब फंक्शन में हमने एक एक चीज़ देखा कि अगर फंक्शन में हम कोई पैरामीटर अगर यूज़ कर रहे हैं, जो कि नेम था, अगर हम उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? एरर दे रहा है, ठीक है? एरर दे रहा था, जब मैं यहाँ पे सुमन नहीं पास कर रहा था तो। दूसरा चीज़, आप मल्टीपल पैरामीटर्स भी आप रख सकते हो, मल्टीपल पैरामीटर्स यहाँ पे आप देख रहे हो। अब कीवर्ड के तौर पे आप रख सकते हो कि आप जो कॉल कर रहे हो वहाँ पे आपने पहले से ऐसा स्पेसिफाई कर दिया कि बाय जो है किसको जाके मिलेगा। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ और वो ये है कि आप जितना पैरामीटर्स आपने फंक्शन के डिफाइन के समय में स्पेसिफाई किया है, उससे आप ज़्यादा नहीं भेज सकते। जैसे ऐड के डेफिनिशन के टाइम में मैंने ए और बी को मेंशन किया था, बट अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ कि एक 3 नंबर्स यहाँ पे मैं भेजूँ, 10 कॉमा 10 कॉमा 20, तब आप देखो क्या होगा, ये मुझे एक एरर थ्रो थ्रो करेगा। एरर क्या बोल रहा है, ऐड टेक्स्ट, यहाँ देखो, ऐड टेक्स्ट फ्रॉम 1 टू 2 पोजिशनल आर्गुमेंट्स,
ऐड कितना ले सकता है? 1 से 2 पोजिशनल आर्गुमेंट्स ले सकता है, बट 3 वेयर गिवन। ठीक है? बट आप कुछ फंक्शंस ऐसे देखोगे जो कि जैसे प्रिंट है। प्रिंट में आप क्या करते थे? मैंने आपको दिखाया भी था कि आप प्रिंट में 1 नंबर को प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट में आप 2 नंबर को एक साथ मतलब द 2 वैल्यू को एक साथ प्रिंट कर सकते हो। आपको जितनी मर्ज़ी आप उतने वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो। ओके? तो ये कैसे काम कर रहा है? यही सेम चीज़ काम कर रहा है इसके साथ, आर्क्स के। आप अगर मैं यहाँ पे कुछ देर इंतज़ार करूँ, जब इसका डिस्क्रिप्शन आता है वो, कि इस फंक्शन में क्या-क्या वो पैरामीटर्स यूज़ हुए हैं, वो ऐप लोडिंग अच्छा है, सिर्फ़ इतना ही आ रहा है, इसमें नहीं दिखाया। बट जब आप प्रिंट का डिस्क्रिप्शन देखोगे तो होगा क्या, वहाँ पे आपको ये इस तरह के आर्गुमेंट्स मिलेंगे। अब इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, तरीका फिर सिर्फ़ आपको इस तरह से रखना है कि आपको एक स्टार देना है और फिर बाद में उसका नाम लिखना है। अगर क्वार्क्स आप यूज़ करना चाहते हो, तो आपको डबल स्टार देना है और बाद में फिर उस क्वार्क्स वेरिएबल के लिए आपको एक नाम देना होगा। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने ऊपर एक फंक्शन बनाया ऐड बोल के। अभी मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ ऐड बोल के ही, बट मैं चाहता क्या हूँ कि इसमें जितनी मर्ज़ी उतने एलिमेंट्स दो, ये सभी को ऐड कर देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसा पहले मैं हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे ए और बी मतलब इनिशियली 2 एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए ए और बी काम चल जा रहा था हमें। बट इस बार मुझे क्या रिक्वायरमेंट है कि हम चाहते हैं कि इस फंक्शन में जितने भी एलिमेंट्स पास किए जाएँ, उन सभी का एडिशन कर के रिजल्ट दे। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे आर्ग्स का। अब जैसा कि मैंने बताया आपको आर्ग्स वहाँ पे सिर्फ़ बताने के लिए लिखा था, बट आप नाम जो है स्टार के बाद आप नाम कुछ भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर्स NUMBERS नंबर्स, ठीक है? अब होता क्या है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि नंबर्स जो है वो दिखेगा कैसे। आप इसको हमेशा एक्सेस करते हो इसी तरह से, ठीक है? नंबर्स, ये नंबर्स जो है ना वो आपको लिस्ट के तौर पे मिलेगा। स्टार मैंने यहाँ पे क्या बताया, आर्गुमेंट्स में आप इस जगह पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने नंबर्स दिया और ये जो फर्स्ट वाला है, इसका रिप्रेजेंटेशन है कि आप इसको इस वाले रिप्रेजेंटेशन मतलब सिंगल स्टार के रिप्रेजेंटेशन के साथ आपने अगर यहाँ पे वेरिएबल बनाया है, तो उसका मतलब होगा कि आप इसके अंदर जितने भी नंबर आप पैरामीटर्स में डालोगे, सब इसको एज़ अ लिस्ट मिलेगा, ठीक है? सेम चीज़ को मैंने दिखाने के लिए मैं ये फंक्शन ऐसे ही बनाया हूँ अभी कि वो नंबर्स दिखता कैसे है। अब और ऐड को मैं कॉल कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 सपोज़ मैंने 6 एलिमेंट्स इसको पास किए। अब मैं जब इसको रन करूँगा, तो मैंने तो सिर्फ़ अभी सिर्फ़ प्रिंट करवाया है, तो आपको देखो सॉरी एज़ अ लिस्ट नहीं एज़ अ टपल मिलेगा। तो ये देखिए ये टपल जो है आपको इसको जाकर के मिल रहा है नंबर्स को, कितने? इन सारे एलिमेंट का। जितने भी मैं अगर यहाँ पे 6 के बाद भी मैं अगर 8 पास करूँ, तो इस सबको एक टपल के तौर पे इस नंबर्स में भेजेगा। अब हमारा लॉजिक यहाँ पे कैसे यूज़ करना होगा कि हम कैसे इन सारे नंबर्स जो मुझे नंबर्स में मिल रहे हैं, उसको हम ऐड करें। तो हम ये करेंगे फॉर लूप लगा लेंगे फॉर आई इन नंबर्स और उसके पहले अच्छा एक कुछ और आ गया। उसके पहले मैं एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं 0 स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है? ताकि मैं उसमें जो भी सम का रिजल्ट आएगा, वो मैं उसमें स्टोर कर सकूँ, ओके? तो फॉर आई इन नंबर्स कोलोन और मैं यहाँ पे क्या करते जाऊँगा आरियस में प्लस इक्वल टू आई क्योंकि ये तो टपल है, टपल में बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो सारे एलिमेंट एक-एक कर के आई में आएँगे और मैं क्या यहाँ पे लॉजिक लिख दे रहा हूँ कि आरियस में उसको ऐड करते चला जाए, प्लस इक्वल टू आई है, ठीक है? मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो जैसे ही मैं ये वाला फंक्शन रन कर एग्ज़ीक्यूट करूँगा,
और मतलब सॉरी ये वाला फोर लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, रिजल्ट को रिटर्न कर दूंगा रिजल्ट को। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इतने सारे नंबर्स को मैंने पास किए हैं और वो उसका रिजल्ट देखो आप 29। अगर आप चाहो तो इसके बाद और भी आप कुछ दे सकते हो, 10, पहले 29 आ रहा था, अब 20 और उसमें ऐड हो जाएगा 49। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो आर्ग्स का, मतलब आप एज ए टपल आप पास करना चाहते हो अगर तो। सेम अगर आप क्वार्क्स अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसमें क्या है, जैसा कि आपको मैंने ऊपर में बताया कि आपको बहुत बार ऐसा होगा कि आपको ध्यान में नहीं रहेगा कि आपने किस पोजीशन पे आपने पैरामीटर्स असाइन किए हैं डिफाइन के टाइम पे किसी फंक्शन को। तो उसके लिए आप यूज करते हो कीवर्ड आर्गुमेंट्स, राइट। तो अगर आपको मल्टीपल कीवर्ड आर्गुमेंट्स भेजने हैं, मतलब जितनी मर्जी उतनी आपको कीवर्ड आर्गुमेंट्स भेजने हैं, तब आप क्या यूज करते हो, डबल स्टार वाला, ये वाला, इसको बोलते हैं क्वार्क्स। सेम आपको डबल स्टार सिर्फ यूज करना है, और क्वार्क्स के जगह पे KWARGS के जगह पे आप कोई भी वेरिएबल नेम, मतलब कोई भी आइडेंटिफायर जो नेमिंग बे है हमारे पाइथन में आइडेंटिफायर्स के लिए, आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एडिशन का दिखाया सेम, यहाँ पे यहाँ पे इवन दो कि क्वार्क्स लिखा हुआ है बट सिंगल स्टार रिप्रेजेंटेशन के साथ यूज हुआ है, राइट। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू आएंगे वो मुझे कैसे मिलेंगे, वो मिलेंगे एज ए टपल, और उन सारे टपल के ऊपर मैं फिर से फोर लूप लगा ले रहा हूँ। तो ये वाला पूरा फंक्शन मेरा बन जाएगा मल्टीप्लाई के तौर पे। अब इसको अगर आप चाहते हो तो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, मल्टीप्लाई। और अगेन इसमें भी मैं बहुत सारे नंबर भेज सकता हूँ, इतने सारे नंबर्स मैंने भेजे और आप देखो उसका रिजल्ट आ गया 720, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वार्क्स पे, मतलब कीवर्ड आर्गुमेंट्स, मल्टीपल कीवर्ड आर्गुमेंट्स अगर आपको पास करने हैं, जितने भी चाहें उतने, तो आप कैसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक फंक्शन मैंने लिख करके रखा था। अगर यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी मुझे इस नेम्स में जो भी मुझे कीवर्ड आर्गुमेंट्स मिले मैं उसको प्रिंट कर दूं, और यहाँ पे जो मिलेंगे आपको वो एज डिक्शनरी मिलेगा। डिक्शनरी क्यों, क्योंकि आप आपने पढ़ा है डिक्शनरी में क्या होता है, आपको की मिलते हैं और उसके वैल्यू, ठीक है। कीवर्ड आर्गुमेंट्स भी तो वैसा ही है एक तरह से, आप समझो तो, कि उसके लिए एक पहले से की है और उसका जो वैल्यू है वो आप उसको पास करते थे जब आप फंक्शन आप हमने यहाँ पे ऊपर में नेम और ग्रीटिंग्स वाला जो बनाया था फंक्शन, और उसके कॉल के टाइम में हमने ग्रीटिंग इक्वल टू वाई किया और नेम इक्वल टू सुमन किया। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक्चुअली में, सेम वे में है ना। आप इसको एज ए डिक्शनरी के तौर पे भी तो आप ट्रीट कर सकते हो कि नेम का वैल्यू सुमन है और ग्रीटिंग का वैल्यू वाई है, इसमें से ग्रीटिंग और नेम क्या हो गया, की हो गया। तो जब भी आप मल्टीपल कीवर्ड आर्गुमेंट्स अगर आप पास करना चाहते हो, इसको एक और चीज, हाँ सॉरी, एक और चीज मैं बताना भूल गया कि ये जो आर्गुमेंट्स होते हैं ना वो ऑप्शनल आर्गुमेंट्स होते हैं। अगर आप सपोज ऐड में मैं तो इतना नंबर पास कर रहा हूँ, उसने उसका रिजल्ट दे दिया, और अगर मैं एक भी एलिमेंट पास ना करूं, तब देखो क्या होगा। मैंने ऐड को कॉल किया और एक भी मैंने यहाँ पे पास नहीं किया वैल्यू, ठीक है। तब उसने क्या रिजल्ट, एरर नहीं दिया, एरर नहीं दिया, ठीक है। मेन मेरा मोटिव वही था बताना कि एरर नहीं दिया, एरर नहीं दिया क्यों, क्योंकि आर्गुमेंट्स जो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन में लिखे जाते हैं, अगर आप सिर्फ इसको यूज कर रहे हो तो इसका मतलब है ये जो होता है वो ऑप्शनल आर्गुमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्शनल आर्गुमेंट्स। सेम अगर आप डबल स्टार का पैटर्न यूज कर करके अगर आप आर्गुमेंट्स बना रहे हो एक फंक्शन का, तो ये जो होंगे ऑप्शनल कीवर्ड आर्गुमेंट्स कहलाएंगे, ऑप्शनल कीवर्ड आर्गुमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन में क्या करना चाह रहा हूँ कि नेम्स में जो भी कीवर्ड आर्गुमेंट्स मिलेंगे मुझे, मैं उसका की और वैल्यू मैं बस शो करा प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। अब की और वैल्यू दोनों के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, फोर की कॉमा वैल्यू इन नेम्स डॉट आइटम्स,
जस्ट इसके पहले जो हमने सेशन लिया था वहां पे डिक्शनरी में हमने देखा था कि जब भी हम डिक्शनरी के ऊपर डॉट आइटम्स फंक्शन यूज करते हैं तो वो क्या रिटर्न करता है, वो एक लिस्ट रिटर्न करता है, लिस्ट ऑफ कीवर्ड कॉमा वैल्यू का टपल रहता है। जितने भी उसमें उस डिक्शनरी में जितने भी की वैल्यू पेयर्स हैं सभी के लिए एक एक टपल आ जाता है, और जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे जो होता है वो की होता है कॉमा वैल्यू होता है। हमने फर्स्ट सेशन में देखा था, तो सेम उसी का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, नेम्स डॉट आइटम्स फंक्शन का, वो एक एक कर करके की और वैल्यू में आएगा और की और वैल्यू हम प्रिंट कर दे रहे हैं। अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं अगर डिस्प्ले पीएलए बाई, और यहाँ पे सपोज हम मल्टीपल की आर्गुमेंट्स जो हम पास करना चाहते हैं वो ऐसे ले लो आप कि नेम है, नेम इक्वल टू रोहन, और क्या, रोल इक्वल टू 101, सब्जेक्ट 1 इक्वल टू 89, सब्जेक्ट 2 इक्वल टू 85। ऐसे जैसा ही आप, हमने इतना आर्गुमेंट्स पास किया, अब आपकी जितनी मर्जी, आपको बस क्या कर ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट्स पास करने होंगे। ठीक है, अब जितनी मर्जी उतने में हमने पास कर दिया, अब उसने रिजल्ट में मुझे क्या दे दिया, ये देखो, नेम में रोहन, रोल में 101, सब्जेक्ट में 89, सब्जेक्ट 2 में 85। अब मैं एक और चीज आपको दिखा देता हूँ कि नेम्स दिख कैसा रहा है। तो मैं तो बताया आपको कि वो दिखेगा कैसा, एक डिक्शनरी के जैसा। तो सेम आप देख लो उसको। ठीक है, आप दोनों आर्गुमेंट्स और क्वार्क्स, आर्क्स एंड क्वार्क्स दोनों को आप एक साथ यूज कर सकते हैं। जैसे इसी डिस्प्ले फंक्शन में मैं क्या चाहता हूं कि पहले कुछ नंबर्स मैं ले लूं, और इसी नंबर्स के ऊपर मैं क्या करूंगा, एडिशन कर लूंगा। अब एक और चीज, मैंने आपको पहले भी बताया कि कीवर्ड आर्गुमेंट्स जो होता है हमेशा क्या होता है, इन जनरल नॉर्मल आर्गुमेंट्स जो कि पोजिशनल आर्गुमेंट है उसके बाद आता है। आप कॉलिंग के टाइम में भी आपको इसको बाद में आपको पास करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर कॉल के टाइम में 1 2 3 4 मैं भेजना चाहता हूँ, तो ए मैं पहले लिखूंगा, उसके बाद मैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मैं प्रिंट तो नेम्स कर ले रहा हूँ, प्रिंट आर्क्स को भी कर ले रहा हूँ, और प्रिंट आर्क्स के बाद मैं फॉर लूप यूज कर ले रहा हूँ, फॉर आई इन ARGS, और यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल मैं बना लूंगा अभी, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस इक्वल टू आई, और यहाँ पे मैं एक रिजल्ट इक्वल टू 0 बना ले रहा हूँ। ये डिस्प्ले फंक्शन में मैंने क्या लॉजिक, सॉरी, फॉर आई इन होगा। हाँ, तो इस डिस्प्ले फंक्शन में मैंने, अगर मुझे, मैं आपको बस एग्जांपल दिखाना चाह रहा था कि एक ही साथ में आर्गुमेंट्स और कीवर्ड आर्गुमेंट्स दोनों यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, पहले हम कुछ नंबर्स लेंगे जो कि कीवर्ड आर्गुमेंट्स नहीं है, वो नॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं। उनके ऊपर हम क्या करेंगे, उनका समेशन हम करेंगे, और बाद में जो भी कीवर्ड आर्गुमेंट्स आएगा, कीवर्ड आर्गुमेंट्स को बस हम एज प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब पूरा फंक्शन का काम जब प्रिंटिंग का ही हो जाएगा उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे समेशन का वैल्यू, जो भी हमने पहले आर्क्स में भेजा है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको रन करके कैसा दिखेगा। तो आप देखोगे, सबसे पहला मैंने स्टेटमेंट लिखा था प्रिंट आर्क्स, मतलब इसको जो भी नॉर्मल आर्गुमेंट्स मिलेंगे यहाँ पे 1 2 3 4, उसको उसने आर्क्स में बाय डिफॉल्ट उसने बना दिया। मुझे एक स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप किसको आर्क्स में रखोगे और किसको नेम्स में रखो। ठीक है, उसने ऑलरेडी आर्क्स में, जो मैंने एज ए पोजिशनल और इसको एज ए समझो नॉर्मल आर्गुमेंट जो मैंने भेजे, तो उसको आर्क्स में कर दिया एज ए टपल, और जितने भी मैंने कीवर्ड आर्गुमेंट्स यहाँ पे पास किए उस उन सभी को उसने डिक्शनरी में रख दिया। ठीक है, अब आप देख रहे होगे
3 4 2 1 का समेशन यहाँ पे आ गया। तो ये है फंक्शन और डिफरेंट वे ऑफ यूजिंग अ फंक्शन। आप बिना आर्गुमेंट्स के यूज कर सकते हो, बिना रिटर्न स्टेटमेंट के यूज कर सकते हो, आप दोनों के साथ यूज कर सकते हो। अब आर्गुमेंट्स में भी मल्टीपल टाइप के हैं कि आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स का यूज कर सकते हो, आप कीवर्ड आर्गुमेंट्स का यूज कर सकते हो, आप ऑप्शनल आर्गुमेंट्स का यूज कर सकते हो। ऑप्शनल आर्गुमेंट्स में क्या क्या है? ऑप्शनल में आपने देखा दो तरीके क्या, एक ऑप्शनल पोजिशनल आर्गुमेंट उसको बोल लो, और दूसरा ऑप्शनल कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीज, स्कोप ऑफ ए वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल को समझाने से पहले मैं एक कोड दिखाना चाहूंगा और मैं उसका आउटपुट आपसे मैं पूछूंगा कि क्या होगा। मैं एक फंक्शन बस बना ले रहा हूँ यहाँ पे, और सपोज इस फंक्शन का नाम मैं हेलो ही दे देता हूँ, और इस फंक्शन के ऊपर में मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ नेम इक्वल टू सुमन। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल और लेता हूँ रोल बोल के, और इस वेरिएबल में मैं ये मैंने वेरिएबल लिया फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा ले रहा हूँ नेम को। और बाहर मैं निकल रहा हूँ, बाहर मैं निकल करके हेलो को कॉल कर ले रहा हूँ, हेलो कॉल हो जाएगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ रोल को। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पे आप देखो नेम बाहर था, हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर में हम क्या कर रहे हैं, रोल को एक न्यू वेरिएबल बना रहे हैं रोल नाम से, ROLL इक्वल टू 100 दे रहे हैं, और वहां पे हम एक स्टेटमेंट लिखे प्रिंट नेम। ठीक है, ये था मेरा फंक्शनल डिफिनेशन का पार्ट। ऊपर मैंने फंक्शन डिफिनेशन से पहले मैंने एक नेम नाम का एक बना लिया। जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल किया तो क्या होगा, फंक्शन कॉल होने के बाद फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा, इस पोजीशन पे आएगा, फिर रोल इक्वल टू 100 हो जाएगा, और प्रिंट नेम उसने प्रिंट कर दिया। अब इस हेलो प्रिंट जैसा ही कर दिया, मतलब फंक्शन का काम आगे कुछ नहीं है तो खत्म हो गया। अब वो कंट्रोल आगे कहाँ, इस लाइन के, इस लाइन में के बाद यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट रोल। जैसा ही यहाँ पे इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने लगा, उसने बोला नेम रोल इज नॉट डिफाइंड, बट नेम रोल तो हमने डिफाइन किया है। यहीं पे आता है कॉन्सेप्ट स्कोप ऑफ ए वेरिएबल। अब हुआ क्या, जो हमने रोल डिफाइन किया वो कहाँ डिफाइन किया, वो फंक्शन के अंदर डिफाइन किया, मतलब वो फंक्शन के अंदर में डिफाइन है, आप उसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। इसका सीधा मतलब यही है। सेम एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो होता क्या है, जैसा ही आपने इस फंक्शन यहाँ पे ए वाला बनाया फंक्शन, तो क्या होगा, इस फंक्शन के लिए एक न्यू मेमोरी एलोकेट होगा, और उस मेमोरी एलोकेशन में उसके अंदर जो जो भी न्यू वेरिएबल्स अगर इनिशियलाइज हुए हैं, तो उस फंक्शन के मेमोरी एलोकेशन के अंदर में वो होगा। ठीक है, अब वो फंक्शन के मेमोरी एलोकेशन में जो जो वेरिएबल असाइन हुआ है, उसका स्कोप बस उतना ही तक रहेगा। फंक्शन के जितने अलॉट हुए हैं मेमोरी एलोकेशंस, उसी के अंदर में आप उस वेरिएबल का यूज कर सकते हो, उसके बाहर नहीं। सेकेंड चीज क्या होता है, जैसे ही आपने फंक्शन कॉलिंग खत्म हुई, वो फंक्शन का जो मेमोरी एलोकेशन था वो समाप्त हो जाता है। जैसे ही आपने उसको कॉल कर लिया, अब क्या होगा, उस फंक्शन का मेमोरी एलोकेशन जो भी था वो अब समाप्त हो गया। जैसे ही आप कॉल करते हो ना, तो फंक्शन का फंक्शन तो पहले मैंने क्या बताया, जैसे ही आप कोड रन होगा तो DEF हेलो देखेगा, तो बस इतना ही तक वो एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, इतना ही तक एग्जीक्यूट होगा, और इतना एग्जीक्यूट होने के टाइम पे वो क्या कर देगा, आपके उस प्रोसेस में जहां पे भी ये प्रोग्राम पूरा रन हो रहा है, उस प्रोसेस में एक नेम, नेम क्या, हेलो, हेलो नेम से एक फंक्शन असाइन कर देगा कि हाँ हेलो नाम से कोई फंक्शन है। ठीक है, अब इन फ्यूचर उस प्रोसेस के अंदर इन फ्यूचर अगर कोई हेलो को एक्सेस करना चाहे, तो इसका मतलब है कि वो उस फंक्शन को एक्सेस करना चाह रहा है। तो जैसा ही यहाँ पे मैं फिर से हेलो को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, इन सेंस कि मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाह रहा हूँ,
तो क्या होगा, जहां पे भी ये असाइन हुआ था एग्जीक्यूशन वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, और वहां उसके अंदर में फिर जाएगा और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो रोल इक्वल टू 100, अब ये रोल इक्वल टू 100 कहाँ पे मैंने बोला आपको एग्जीक्यूट होगा, जो भी फंक्शन का स्कोप बनेगा उसके अंदर। अब मैं अगर कोशिश, मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन के बाहर अगर उसको एक्सेस करने का चाह रहा हूँ, तो मुझे हमेशा ये एरर देगा कि फंक्शन, सॉरी, नेम रोल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब फंक्शन, एक और चीज, जैसे, अच्छा यहाँ पे मैंने एग्जांपल ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया था कि आप देखो, फंक्शन के बाहर के कोई एलिमेंट, कोई वेरिएबल है, जैसे नेम है, तो ये जो है ये पूरा मेन में है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि अगर आप सी में भी अगर आपने कोडिंग किया होगा, तो वहां पे जो भी आप फंक्शन या जो भी प्रोग्राम लिखते हो, तो हमेशा आप वॉइड मेन से स्टार्ट करते हो। वॉइड मेन के ही अंदर में मेन एग्जीक्यूशन होता है, जहां से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। पाइथन के अंदर में भी सेम कॉन्सेप्ट है, बट पाइथन आपको एक्सप्लिसिटली उसको बनाने के लिए नहीं बोलता है। आप सी में क्या करते हो, सी में आप इस तरह से आप कोड में लिखते हो पार्टिकुलरली, जैसे मैं दिखाता हूँ। या तो आप यूज करोगे, ऊपर में आप पहले कुछ इंपोर्ट लोगे, हैशटैग इंक्लूड करके, टीएल क्यूडी, ऐसा कर करके, फिर बाद में आप एंगुलर ब्रैकेट में फाइल का नाम लिखोगे, और फिर आप लिखोगे, या तो आप वाइड मेन लिखोगे और करली ब्रेसेस आप दोगे, और इसके अंदर आप अपना प्रोग्राम में आपको जो भी काम करना है आप इसके अंदर लिखोगे, या तो आप यूज करते हो इंट मेन। ठीक है। बट पाइथन के अंदर में आपको ये एक्सप्लिसिटली बनाने के लिए नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर सब कुछ मेन से ही स्टार्ट होना है, तो उसको बनाने की क्या जरूरत, पाइथन ऐसा बोलता है। क्योंकि पाइथन तो मैंने आपको बताया कि बहुत ही प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज है। प्रोग्रामर को ज्यादा काम करने की, होता है ना कि थोड़ा एक तरह से ऐसा भी समझो कि थोड़ा सा प्रोग्रामर को समझता है कि प्रोग्रामर लेजी है, क्यों मैं उससे वो काम करवाऊं जो बाय डिफॉल्ट, मतलब बाय स्टैंडर्ड डिफाइन है कि हाँ वो वहीं से होगा। जैसे सी के सारे प्रोग्राम आप देखोगे वाइड मेन से शुरू होंगे, इंट मेन से शुरू होगा, तो मतलब मेन फंक्शन के अंदर में ही आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराने। अब सारे प्रोग्राम अगर सेमी फॉर्मेट अगर यूज कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों ना तरीका बना दिया जाए कि मुझे लिखने की जरूरत ही ना पड़े। तो इनसाइड दिस क्या होता है कि पाइथन के अंदर में क्या होता है, जो भी फंक्शन आप यहाँ पे आपने, जो भी आपने प्रोग्राम के अंदर में लिखा, इनसाइड में क्या होगा, पाइथन उसको मेन के अंदर में अटैच करेगा और वो एग्जीक्यूट करेगा। आपको एक्सप्लिसिटली मेन के अंदर में कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है। तो जो मैंने आपको बोला कि नेम इक्वल टू सुमन जो है, ये क्योंकि मेन के अंदर का फंक्शन है, सॉरी वेरिएबल है, मतलब ये पूरे प्रोसेस में इसको कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है। इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। जो भी फंक्शन के बाहर में है इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। मतलब कि जैसे यहाँ पे भी देखो आपने, फंक्शन के अंदर में यूज कर रहे हैं हम लोग नेम, राइट। बाहर में तो हम कर ही सकते हैं प्रिंट नेम, बाहर में तो यूज कर ही सकते हैं इसको। अब देखो प्रिंट नेम दो बार आया, क्योंकि प्रिंट नेम एक फंक्शन कॉलिंग के चलते, और प्रिंट नेम एक बाहर में जो मैंने लिख रखा है उसके लिए। तो इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और जो भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर में डिफाइन होते हैं, तो क्या होता है, वो फंक्शन के अंदर में ही एग्जीक्यूट होगा या फिर एक्सेस होगा, कुछ भी वो फंक्शन के अंदर में ही होगा, तो इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। इसको बोलते हैं लोकल, और इसको बोलते हैं ग्लोबल। तो वेरिएबल ऑफ, स्कोप ऑफ वेरिएबल में यही दो कॉन्सेप्ट हैं। ओके। एंड नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट, नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन क्या होता है, जैसे आप नेस्टेड फंक्शन, सॉरी नेस्टेड फंक्शन नहीं, हम लोग देखे थे नेस्टेड लूप या फिर नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन में क्या होता कि एक इफ है, उसके अंदर में अब जाकर के फिर से आप कोई इफ एल्स स्टेटमेंट लिख रहे हो, तो एक हायरार्की बन रही है। सेम आप फंक्शंस के साथ में भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, मैथमेटिक्स, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ऐसा फंक्शन। ये क्या लेगा वैल्यू, सपोज आप कुछ भी नहीं लेगा,
इसके अंदर में क्या मैं ले रहा हूँ, यूजर से मैं 2 इनपुट मांग रहा हूँ, यूजर से 2 इनपुट मांग रहा हूँ कि तुम 2 नंबर दो, मैं उसके ऊपर एडिशन करके तुम्हें आउटपुट दिखाऊंगा कुछ इस टाइप का। तो मैंने सबसे ऊपर मैंने एक फंक्शन बनाया मैथमेटिक्स करके, मैथमेटिक्स। उसके अंदर में मैं यूजर से 2 नंबर मांगूंगा इनपुट में, तो ए इनपुट, और क्योंकि नंबर मुझे लेना है इनपुट में, तो मैं क्या कन्वर्ट में कर लूंगा इनपुट को इंटीजर में, इनपुट इंटर ए नंबर, बी इंटीजर के अंदर इनपुट इंटर अनदर नंबर। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ ऐड बोल के। ऐड क्या करेगा कि ये 2 नंबर लेगा, ए कॉमा बी, और रिटर्न कर देगा ए प्लस बी, उसका एडिशन को वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब मैं इस बाहर वाले फंक्शन में, मतलब ये तो दूसरा फंक्शन है राइट, तो अब इसको कॉल कराना होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस फंक्शन में कॉल कर सकता हूँ इसको ऐड ए कॉमा बी बोल के, और इसी को मैं रिटर्न करा दूंगा बाहर वाले फंक्शन के लिए। तो एग्जैक्टली मैंने किया क्या, मैंने मैथमेटिक्स नाम का एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैं यूजर से 2 इनपुट ले रहा हूँ ए और बी में, और जो मैंने मैथमेटिक्स नाम का फंक्शन बनाया उसी के अंदर एक और फंक्शन बनाया ए और बी करके। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। जब भी आपको इस तरह का नीड हो कभी इन फ्यूचर, या कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि आपको एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन बनाना पड़ रहा है, तो आप उसको एज ए नेस्टेड फंक्शंस बोलते हैं। जैसे ए वाला स्ट्रक्चर मैंने लिखा तो इसको नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। अब मैं जैसे ही मैथमेटिक्स को सपोज कॉल करूंगा बाहर से, अब अगेन मैं पहले मैथमेटिक्स को कॉल करा कर दिखा देता हूँ, MATHE मैथमेटिक्स, सेम स्पेलिंग है, हाँ ठीक है। जैसे ही मैंने इसको कॉल कराया तो अब क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा तो 2 नंबर मांगेगा, मैं इसको दे दे रहा हूँ 1 और दे दे रहा हूँ 13, रिजल्ट में आ गया 14। ठीक है, ये तो ठीक था क्योंकि जैसा ही ए और बी इसको मिल गया वो रिटर्न स्टेटमेंट के पास आएगा। पहले तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या बोला था, जैसा ही डी एफ के पास आता है तो वो क्या करता है, बस उस जिस भी जहाँ पे भी है इसका स्कोप, उस स्कोप में एक नेम असाइन कर देता है, जो भी फंक्शन का नाम है उसका, इसके लिए एक फंक्शन के लिए। ठीक है, तो उसने यहाँ पे क्या किया, एक ऐड नाम का एक फंक्शन बना दिया, मतलब डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे कॉल हुआ है ए कॉमा बी के साथ में, तो ए और बी का जो वैल्यू यहाँ पर से इनपुट में आएगा वो पास हो जाएगा इसके और इसके लिए, और वही चीज रिटर्न हो जाएगा ए प्लस बी। तो ए जो रिटर्न होगा कहाँ पे, एग्जीक्यूशन को ला देगा यहाँ इसके पास, इस पोजीशन पे, क्योंकि मैंने बताया रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, जहां से उसको कॉल किया गया है एग्जीक्यूशन वहां पे भेज देता है। तो कॉल कहाँ से, ऐड को कहाँ से कॉल किया गया था, यहाँ इस पास राइट, यहाँ से कॉल किया गया था, तो यहाँ से जो रिटर्न होगा उसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे उसको वैल्यू मिल जाएगा ए प्लस बी का रिजल्ट। और मैथमेटिक्स फंक्शन अगेन उसी वैल्यू को जो ऐड से उसको मिला उसको रिटर्न कर दे रहा है, तो वो उस जो मैथमेटिक्स जो रिटर्न कर रहा है वो कहाँ पे मिलेगा, इस कोड सेल के पास। तो 14 आ रहा है रिजल्ट। अब अगर आप सोचोगे ऐसे कि मैंने तो ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और मैं उसको भी तो यूज कर सकता हूँ कि ऐड 12, 13 कर सकता हूँ ऐसे। बट जैसा ही आप ए करोगे तो आपको एरर नहीं दिया, एरर नहीं दिया, इसका कारण ये नहीं था कि इसने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया है, बल्कि हमने प्रीवियस कहीं पे ऐड नाम का फंक्शन बना करके रखा था राइट। तो उसके चलते अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि इस वाले फंक्शन का नाम मैं डिफरेंट थोड़ा सा कर देता हूँ, सपोज कैपिटल ए से ऐड इसको बना देता हूँ, कैपिटल ए से ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे भी कैपिटल ए वाला ऐड ऐसे एग्जीक्यूट होगा। अब देखो मैथमेटिक्स मैंने रन किया, मैथमेटिक्स को रन करूंगा तो 2 नंबर्स मुझे इनपुट के लिए आएंगे,
मैंने 10 दे दिया, फिर 12 दे दिया, रिजल्ट में आपको 22 मिल जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए से ऐड जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया और मैं उसको एक्सेस करने के लिए जाऊँ, तो आपको यहाँ पे एक एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले कि फंक्शन के अंदर में कुछ भी अगर आपने एक वेरिएबल भी बनाया है एक, या तो आप एक फंक्शन बनाए हैं, इसका स्कोप कहाँ तक होगा? सिर्फ इसी फंक्शन के तक होगा। सिर्फ जैसे मैथमेटिक्स के अंदर मैंने अगर इस ऐड फंक्शन को डिफाइन किया है, मतलब इस ऐड फंक्शन को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? सिर्फ मैथमेटिक्स के अंदर कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं। ठीक है? तो इसीलिए हम उसको बाहर नहीं कर सकते। तो आप देखो वो एरर दे रहा है। तो ए हुआ नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन उस वैसे फंक्शन को कहते हैं जब आप किसी फंक्शन के अंदर में कोई फंक्शन आप बनाते हो तो। ठीक है? जैसे यहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स नाम के फंक्शन के अंदर में कैपिटल ए से ऐड वाला फंक्शन बनाया। तो ये हो गया नेस्टेड फंक्शंस। अब एक स्टेटमेंट होता है पाइथन में ऐसा कहा जाता है कि फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन्स। अब फर्स्ट क्लास सिटीजन्स होने का फायदा क्या है? फर्स्ट क्लास सिटीजन होने का फायदा ये है कि जैसे आप इसको एज़ ए डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हो। डेटा टाइप्स यूज़ करने का मतलब क्या है? जैसे आप a इक्वल टू 10 बनाते हो, तो आप क्या करते हो कि जैसे ही मैंने 10 जो है a में रखा, तो पाइथन के अंदर में क्या-क्या चीज़ें होता है ऐसे। जैसे ही आपने a इक्वल टू 10 किया तो क्या a जो है क्या बन गया? अब एक नंबर बन गया। कैसे? डायनामिकली बन गया। और वो कैसे हुआ कि 10 का जो भी टाइप है, वही टाइप a का हो जाएगा और 10 जो है अब a में चला जाएगा, राइट? तो आप फंक्शन के साथ भी ऐसा कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो x इक्वल टू जैसे ऊपर जो मैं दिखा रहा था कि स्मॉल ए ऐड वाला फंक्शन हमने बनाया था ऊपर में, तो आप फंक्शन को भी असाइन कर सकते हो किसी वेरिएबल के अंदर। ए फंक्शन है मेरा ऐड नाम से, ऐड को मैं क्या क्या कर रहा हूँ असाइन करना चाहता हूँ कहाँ? एक्स के अंदर। जैसे ही मैं ऐसे करूँगा, अब मैं अगर टाइप देखूँ एक्स का, तो आपको दिखेगा कि एक्स इज़ ए फंक्शन नाउ। देखो, एक्स इज़ ए फंक्शन, राइट? और मैं अगर ऐसे करूँ कि एक्स को मैं अब कॉल कर रहा हूँ 1 और 2 देकर, तो आपको दिखेगा कि वो प्रिंट कर रहा है 3। तो हुआ क्या कि जैसे आप नॉर्मल एक वेरिएबल को असाइन करते हो ना, आप फंक्शन को भी किसी वेरिएबल के अंदर में असाइन कर सकते हो। जैसे मैं पहले एग्जांपल दे रहा था कि a इक्वल टू 10 आप लिखते हो, आप किसी फंक्शन को भी किसी वेरिएबल के अंदर में डाल सकते हो। ये पहली चीज़ है फर्स्ट क्लास सिटीजन होने का। दूसरा क्या चीज़ है कि आप सपोज़ मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ वो फंक्शन होगा ओपीआरए ऑपरेशन बोल के। ऑपरेशन फंक्शन क्या करेगा, ए कुछ एफ लेगा और रिटर्न कर देगा। अच्छा, एफ लेगा और कुछ 2 वैल्यू लेगा ए कॉमा बी और रिटर्न क्या कर देगा, एफ को ए कॉमा बी ऐसे। कहने का सेंस ये जो एफ है, ये ऑपरेशन नाम का जो फंक्शन है ना, वो एक फंक्शन भी इनपुट लेगा। ठीक है? मैं आपको पहले रन करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊँगा। ओपीआरएटीआईओन ऑपरेशन। अब मेरा एक फंक्शन बना हुआ है एक्स बोल के, मैंने एक्स को भेज दिया। जब मैं ऑपरेशन को कॉल कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इवन मैं फंक्शन भी पास कर सकता हूँ। ठीक है? एक्स तो मेरा फंक्शन है, एक्स को मैं पास कर रहा हूँ। एक्स या फिर आप ये भी दे दो ऐड, ऐड तो मेरा फंक्शन है, मैं वो भी पास कर सकता हूँ और साथ में 2 वैल्यू मैंने इस ऑपरेशन के लिए असाइन किया है। सपोज़ 10 कॉमा 23। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, तब आप देखना क्या होगा कि वो रिजल्ट मुझे एडिशन दे दे रहा है। वो कैसे? क्योंकि मैंने जो फंक्शन बनाया था उसमें एक फंक्शन ले रहा हूँ एफ बोल के फिर 2 वैल्यू ले रहा हूँ और रिटर्न कर दे रहा है क्या? जो फंक्शन मैंने लिया है उसी को कॉल कर रहे हैं ए और बी को पास करते हुए। अब एफ को कॉल कर रहे हैं, एफ को कॉल कर रहे हैं इन सेंस कि वो ऐड को कॉल कर रहा है, ऐड को कॉल कर रहा है किसके साथ? ए और बी को वैल्यू के साथ। तो ए और बी का वैल्यू क्या है? 10 और 23। यही तो जाके मिलेगा ना? एफ को मिलेगा ऐड, ए को मिलेगा 10, बी को मिलेगा 23। ठीक है? और इसी एफ, एफ जो कि मिला, एफ को क्या मिला? ऐड, ऐड जो कि एक फंक्शन है। तो इसी ऐड फंक्शन को समझो हमने यहाँ पे कॉल किया ए कॉमा बी दे करके, राइट? हम एक और फंक्शन ऊपर में बनाए थे मल्टीप्लाई बोल करके। अगर
मल्टीप्लाई बोल करके 10, 24 आप ये भी पास कर सकते हो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर में जो भी उसको वैल्यू मिल रहा था वो प्रिंट भी कर रहा था, तो उसने वो प्रिंट कर दिया, बट उसने रिजल्ट दे दिया 24 × 10 का। तो दो चीज देखा, आप किसी वेरिएबल में फंक्शन को असाइन भी कर सकते हो, दूसरा आप किसी फंक्शन के अंदर एक दूसरे फंक्शन को पास भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक तीसरी चीज। फर्स्ट क्लास सिटीजन होने का जो बेनिफिट है वो यही है कि आप किसी मैथ्स नाम का सपोज एक फंक्शन ले रहा हूँ, और एक क्या करता है कि एक कोई मानो एक स्ट्रिंग लेता है यस बोल के, और ये रिटर्न क्या करता है, इफ इस फंक्शन के अंदर में 3-4 मानो ऐसा कि फंक्शन है इसके पास, तो मैं इसके अंदर में कुछ-कुछ फंक्शन बना देता हूँ, ऐसा ही नाम से, ऐड नाम से, a, b, और ये क्या करेगा, मैथ्स रिटर्न कर देगा a प्लस b को, यप, मल्टी सिर्फ मैं रख रहा हूँ x, y को, या a, b आप तो कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि ये जो वेरिएबल बनेगा वो कहाँ बनेगा, फंक्शन के स्कोप में बनेगा, और फंक्शन का स्कोप तो हमेशा यूनिक रहेगा, पुराने दूसरे फंक्शन के स्कोप से वो मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो रिटर्न करा दो x इंटू वाई। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक इफ स्टेटमेंट लेता हूँ कि इफ एस डबल इक्वल टू एड, तो मैं क्या रिटर्न करा दे रहा हूँ, ऐड फंक्शन को, एडीडी वाले को। ठीक है, एडीडी क्या है, इस फंक्शन के स्कोप में ऐड क्या है, एक फंक्शन है, मैं उसको रिटर्न भी करा सकता हूँ। ठीक है, फिर इफ जो है यस डबल इक्वल टू मल्टीप्लाई है, मैं क्या रिटर्न करा दे रहा हूँ, मल्टी, मल्टी ये वाला। ठीक है, अब मैं इस डिफिनेशन पार्ट को एग्जीक्यूट किया, कुछ मैं न्यू कोड सेल्स बना ले रहा हूँ, और यहाँ पे जैसे ही मैं मैथ्स को कॉल करूंगा, METHS मैथ्स को कॉल करूंगा, मैथ्स को क्या चाहिए, मैथ्स को एक स्ट्रिंग चाहिए, अब स्ट्रिंग में मैंने ऐड दे दिया। ठीक है, अब आप देखना जैसे ही ये रिटर्न करेगा तो मुझे एक फंक्शन रिटर्न होगा, देखो आप यहाँ पे फंक्शन डॉट मैथ्स, और यहाँ पे देखो एक कौन सा फंक्शन, वो लोकल फंक्शन है, किसके, मैथ्स के, मैथ्स का लोकल फंक्शन है ऐड, और यही मुझे रिटर्न कर रहा है। अब मैं इस मैथ से जो मुझे रिटर्न मिल रहा है, सपोज मैं उसको एक वेरिएबल में रख लेता हूँ एक्स बोल के, और जैसे ही मैं एक्स में रख लिया मतलब वो फंक्शन जो है एक्स में बन गया, मतलब एक्स जो है वो एक फंक्शन बन गया। ठीक है, टाइप ऑफ एक्स देखो, एक फंक्शन बन गया। तो मेरा सेंस क्या था फर्स्ट क्लास ऑफ सिटीजन समझाने का, कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हो फंक्शन के साथ, आप किसी वेरिएबल में फंक्शन को असाइन कर सकते हो, जो कि यहाँ पे हुआ। दूसरा, आप एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन पास कर सकते हो। तीसरा, इवन आप एक फंक्शन को रिटर्न भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब फंक्शंस भी वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे एक वेरिएबल काम करता है पाइथन में। आप एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हो, ठीक है, कोई नंबर या ऐसा, तो आप फंक्शन को भी असाइन कर रहे हो वेरिएबल के पास। आप कोई वेरिएबल या उस तरह से आप कुछ आर्गुमेंट जो पास करते हो वो कोई वेरिएबल ही तो होता है या वैल्यू होता है, तो आप फंक्शंस में पास कर रहे थे। आप अभी क्या कर रहे हो, फंक्शन को भी आप पास कर रहे हो। ठीक है, इवन आप फंक्शंस को रिटर्न भी कर रहे हो। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं फर्स्ट क्लास सिटीजन होने का। और जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, एक्स जो है वो अब फंक्शन बन गया है, तो इवन इस एक्स को अगर आप कॉल भी करोगे, और क्योंकि एक्स जो है किस जो आ रहा है वो ऐड से आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ देर आप वेट करोगे तो यहाँ पे ए और बी आपको दो आर्गुमेंट्स आपको इसमें पास करने होंगे। ए मैंने दे दिया 1,3, और देखो एक्स क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे फंक्शंस के। अब फंक्शंस इतना कुछ पढ़ा, उसका बेनिफिट क्या है फंक्शन का, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों हम फंक्शंस को यूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज है
कोड मॉड्युलैरिटी क्या होता है कि सपोज जब आप प्रोजेक्ट लेवल पे काम करोगे, जब आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होगे, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, राइट? आपको बहुत सारे जैसे इवन इस नोटबुक में आप देखो, तो ये सारे जो अ, लाइक इतने मेनू बने हुए हैं ना, आप ऐसा समझो हर एक मेनू के लिए एक फंक्शन एसोसिएटेड होगा। क्यों? क्योंकि हर एक मेनू का अलग काम है, राइट? तो जैसे मैं यहाँ पे ऐड, मल्टीप्लाई, टाइप्स एंड डिफरेंट फंक्शंस बना रहा था, किस लिए? क्योंकि ऐड का काम अलग है, मल्टीप्लाई का काम अलग है। तो क्यों ना उसके लिए फंक्शन बना दें। अब उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जब भी मुझे अगर किसी 2 नंबर या मल्टीपल नंबर्स को अगर मुझे गुणा करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो बार-बार मुझे वो सारे फॉर लूप नहीं लिखने होंगे या फिर बार-बार मुझे वो ऑपरेशंस खुद से नहीं लिखने होंगे। जैसे 1 इंटू 12 मुझे अगर करना है, तो मैं ठीक है यहाँ पे कर लूँगा, लेकिन इन फ्यूचर फिर से मुझे किसी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो फिर से मुझे इस टाइप का कोड लिखना होगा या फिर मुझे 10 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे ऐसे लिखना होगा पूरा। तो बार-बार उसको लिखने से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक फंक्शन बना लेते हैं, जैसे हमने बना लिया मल्टीप्लाई नाम का और जितनी बार हमें ज़रूरत होगा, हम बस उस फंक्शन को यूज़ कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो इसमें जितने नंबर मुझे देने हैं, हमने पास कर दिया और हमें रिजल्ट लिख के मिल गया, ठीक है? तो जब भी हमें किसी कोड को अ, जब भी कोई कोड जो है मतलब जिसका फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, मतलब जैसे मल्टीप्लाई का फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, एडिशन का डिफरेंट है। हम एक फंक्शन ऊपर मैं ऐसा ही एग्जांपल के लिए बना रहे थे हेलो वाला जो कि ग्रीट कर रहा था, ठीक है? एक नाम हम पास कर रहे थे और वो ग्रीट कर रहा था हेलो सुमन, हेलो रोहन ऐसे करके। तो वो उसको बोलते हैं मॉड्युलैरिटी। आप क्या कर रहे हो कि एक पार्टिकुलर टाइप के फंक्शंस को मतलब एक पार्टिकुलर टाइप के ऑपरेशंस को आप अलग कर दे रहे हो। मल्टीप्लाई के ऑपरेशंस को आपने अलग कर दिया, उसके लिए अब एक अलग फंक्शन बना दिया। आपने एडिशन के लिए अलग फंक्शन बना दिया। आप डिवीज़न के लिए कर सकते हो और भी बहुत सारे ऑपरेशंस है, उसके लिए आप अलग-अलग कर सकते हो। तो आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आप हर एक टाइप के ऑपरेशंस के लिए अलग-अलग मॉड्यूल बना रहे हो। आप ऐसे समझो। तो ये देता है कोड मॉड्युलैरिटी। सेकंड चीज़ है कोड रीडाबिलिटी। कोड रीडाबिलिटी का मतलब कि आप जब मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड लिख रहे हो, सपोज़ मैंने इतना लाइन ऑफ कोड लिखा, सेम चीज़ जो मैंने इतना लिखा है, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है फंक्शंस का जब मैंने यूज़ किया है, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ, ठीक है, हाँ, यहाँ पे ऐड किया है। इवन ए पर्सन हू इज़ नॉट फ्रॉम कोडिंग बैकग्राउंड, ठीक है? वो भी अंडरस्टैंड कर सकता है क्योंकि जो लॉजिक क्योंकि फंक्शंस का तो आप खुद से अपना नाम दे सकते हो, राइट? जब आप खुद का नाम दे सकते हो फंक्शंस को, तो उस फंक्शन जो ऑपरेशन कर रहा है, आप क्यों ना उस वही नाम दे दो। जैसे कोई फंक्शन है एडिशन कर रहा है, तो हमने नाम दे दिया ऐड। अब कोई नॉन प्रोग्रामिंग का भी बंदा अगर रहेगा, वो देखेगा कि हाँ, अच्छा यहाँ पे ऐड लिखा है मतलब इस इस वाले पार्ट से ऐड होगा मतलब एडिशन होगा, ऐसा कुछ, ठीक है? बट अगर आप फंक्शन का यूज़ ना कर करके सेम ए वाला ऑपरेशन अगर आप करने जाते, तो आप क्या होता कि आपको हमेशा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स में लिखना होता और उससे क्या होगा वास्ट नंबर ऑफ कोड होंगे और हर एक कोड का सिग्निफिकेंस आप जान रहे हो क्योंकि आपने उसको लिखा है बट कोई और दूसरा बंदा जो या तो नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से है या फिर अगर इवन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से है बट वो आपके लॉजिक को अगर नहीं समझ पा रहा है कि आपने क्या यूज किया है तो उस कोड को पढ़ने में कोड को समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है? तो इसलिए हम फंक्शन का यूज करते हैं और तीसरा रीयूजेबिलिटी, वो तो मॉड्युलैरिटी समझाने के टाइम पे भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको सपोज़ मल्टीप्लाई का काम आपको बार-बार करना होगा, तो आप बार-बार जिस जो भी काम आपको बार-बार करना हो, आप उसके लिए एक फंक्शन बना लो। उससे क्या होगा, सपोज़ कोई ऑपरेशन कर रहे हो, कोई प्रोग्राम ऑफ कोड लिख रहे हो, उसके लिए आपको 4 लाइन ऑफ कोड ज़रूरी होता है। कोई प्रोग्राम ऐसा क्या कि जैसे यहाँ पे जैसे कहाँ गया मैं एक मैथमेटिक्स नाम का फंक्शन बनाया था, राइट? जिसमें मैं यूज़र से 2 इनपुट ले रहा हूँ। अगर मैं फंक्शंस के अंदर में नहीं डालता फंक्शंस के अंदर में मैं नहीं डालता तो क्या होता कि जितनी बार मुझे ज़रूरत पड़ती यूज़र से 2 नंबर के लिए, मुझे बार-बार इतना लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता, राइट? अभी क्या होगा, अभी जब भी मुझे यूज़र से 2 नंबर चाहिए होंगे और उसपे एडिशन करना होगा, तो बस मुझे इतना लिखना होगा इस वाले। ये वाला पूरा कोड मैं एक बार लिखा हूँ और जितनी बार मुझे इसको यूज़ करना हो, जितनी बार मुझे ज़रूरत पड़ती है, मुझे बस इतना लिखना होगा
ठीक है। तो ये हो गया क्या, कोड रीयूजेबिलिटी को। हमने इतने लाइन ऑफ कोड को जितनी मर्जी उतनी बार यूज कर रहे हैं, बस किससे, इस नेम के थ्रू, मैथमेटिक्स। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं आपको फंक्शंस यूज करने के, और डिफरेंट वे हैं फंक्शन को यूज करने का, जो कि हमने आज देखा इस पूरे सेशन में। तो ऑल्दो 1.5 आवर का सेशन हो गया है, तो दिस इज ऑल इन दिस सेशन, एंड वी विल लर्न सम मोर थिंग इन द अपकमिंग सेशन। आप लोगों को कुछ डाउट है अगर अभी तक, तो आप पूछ सकते हो।